اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آپ اگر بک پر دیکھیں تو کل ہم قواعد الصرف پڑھ رہے تھے، تو اس میں قواعد الصرف میں کل ہم نے یہ جو ہے وہ پڑھے تھے۔ تو بات چل رہی تھی امسا کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد ازہا طالب نشیطن۔ ازہا جو ہے نا، یہ آتا ہے چاشت کے وقت کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے۔ کس کے وقت کو؟ چاشت کے وقت کو۔ تو چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جی، چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ چاشت کے وقت سے مراد جب صبح سورج جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب سورج کچھ اوپر ہو جائے، بلند ہو جائے، تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی کہ ازہا طالب نشیطن، طالب علم چست ہو گیا۔ اصل میں تھا طالب نشیطن، طالب علم چست ہے، طالب علم چست اصل میں تھا مبتدا خبر۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے طالب علم کا چست ہونا، لیکن ازہا نے جو ہے اس جملے کے معنی کو اپنے وقت کے ساتھ ملا لیا ہے کہ چاشت کے وقت طالب علم چست ہو گیا، چاشت کے وقت طالب علم کیا ہو گیا؟ چست ہو گیا۔ آگے ہے زلہ، زل النور ساتین۔ زلہ جو ہے نا، یہ دیتا ہے معنی سارے دن کا۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ سارے دن کا، یعنی زلہ کا معنی ہوتا ہے پورا دن، اور آگے اسی طرح باتا ہے، باتا کا معنی ہوتا ہے پوری رات۔ تو زلہ اور باتا، زلہ پورے دن پہ دلالت کرتا ہے اور باتا پوری رات پہ دلالت کرتا ہے۔ تو زلہ باتا بھی جملے کے معنی کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے زل النور ساتین، سارا دن روشنی پھیلی رہی، سارا دن روشنی پھیلی رہی۔ اور بات المریض شاکین، مریض پوری رات تکلیف میں رہا۔ بات المریض شاکین، اصل میں تھا المریض شاکیون، مریض جو ہے وہ تکلیف میں ہے، مریض جو ہے وہ کس میں ہے؟ اب باتا نے مریض کے تکلیف میں ہونے کو اپنے رات کے وقت کے ساتھ جوڑ لیا کہ ساری رات مریض جو ہے وہ تکلیف میں رہا، ساری رات جو ہے وہ مریض کس میں رہا؟ تکلیف میں رہا۔ اور آگے ہے لیسا۔ لیسا جو ہے یہ نفی کا معنی دیتا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ نفی کا۔ جیسے لیسا ہشام مسافرن، مسافر ہشام مسافر نہیں ہے، ہشام مسافر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اصل عبارت کیا تھی کہ ہشام کا مسافر ہونا، ہشام کا مسافر، لیکن لیسا نے اس معنی میں نفی پیدا کر دی کہ ہشام مسافر، ہشام مسافر نہیں ہے۔ آگے آ گیا جی ما زالا، من فکا، ما فاتیا، ما باریہ۔ ان چاروں کو سمجھے، یہ چاروں کے چاروں کام کے تسلسل پہ دلالت کرتے ہیں۔ کس پہ دلالت کرتے ہیں؟ یعنی یہ کام لگاتار ہوتا رہا ہے، یہ کام تسلسل سے ہوتا رہا ہے، مسلسل ہوتا رہا ہے، لگاتار ہوتا رہا ہے۔ آپ مثالوں کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے دیکھیں ما زال الحارث یقظا، چوکیدار مسلسل جاگتا رہا، چوکیدار مسلسل جاگتا رہا۔ من فق الطالب کاتبا، طالب علم جو ہے وہ
मुसलसल लिखता रहा। देखें वही माना आ रहा है, तसलसल के साथ एक काम हुआ हो रहा है। मा फातिया हमजा तो कारियन, हमजा मुसलसल पढ़ता रहा, हमजा मुसलसल पढ़ता रहा। और मा बारी अल बर्दु शदीदन, सर्दी मुसलसल जो है वो शदीद रही, सर्दी जो है वो मुसलसल। आगे आ जाएं जी, आगे है मादामा। मादामा जो है ना, ये भी दवाम पे दलालत करता है, ये भी किस पे दलालत करता है, दवाम पे। यानी ये काम जो है वो होता रहा है। जैसे देखें, इकरा तू पढ़, मादामल उस्ताद जालिसन, जब तक उस्ताद जो है वो बैठा है, जब तक उस्ताद जो है वो क्या है, बैठा है। यानी उस्ताद के बैठने तक तुमने ये काम मुसलसल करना है, उस्ताद के बैठने तक तुमने ये काम क्या, इकरा पढ़, पढ़ कब तक पढ़, यानी जब तक उस्ताद जो है वो बैठा है। तो ये जी दीगर जो है वो हो गए हमारे अफ़ाले नाक़सा। इसके बाद जो है वो कादा व ख़वातुहा हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। कादा व ख़वातुहा, इन में से हर एक का माना वो उम्मीद है आपने साथ साथ लिख लिया होगा, जो जो माना मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ जो है वो आपने साथ साथ मिसालें ये याद करनी है। ये क्या करनी है। अब आप आ जाएं कायदों पे। ये कायदा देखें, मामूज के कवायद जो मैंने आपको कहा था ना, कल हम पढ़ेंगे। कायदा रासुन, कायदा रासुन जी। देखें कायदा क्या है, पहले कायदा देखें। अगर हमजा साकिन हो, अगर हमजा क्या हो, साकिन हो, और उसका मां कबल मुतहर्रिक हो, और उसका मां कबल क्या हो, पहली बात हमजा क्या हो, पहली बात हमजा क्या हो, साकिन हो। और दूसरी बात यह कि उसका मां कबल क्या हो, उसका मां कबल क्या हो, मुतहर्रिक हो। तो हमजा साकिन हो, उसका मां कबल मुतहर्रिक हो। क्या मतलब मां कबल मुतहर्रिक हो, मां कबल मुतहर्रिक होने का मतलब यह है कि मां कबल हरफ जो है उसके ऊपर जबर हो या जेर हो या क्या हो, पेश हो। अच्छा जी, तो फिर क्या होता है जी, तो उसे मां कबल की हरकत के मुवाफिक हरफे इल्लत से बदलना जायज है, उसे मां कबल की हरकत के मुवाफिक हरफे इल्लत से बदलना जायज है। क्या मतलब, यानी मां कबल जो हरकत है, मां कबल हरकत के मुताबिक हरफे इल्लत। अब जबर के मुताबिक हरफे इल्लत कौन सा है, कल मैंने बताया था, जबर के मुताबिक कौन सा है, अलिफ। और पेश के मुताबिक कौन सा है, वाव। और जेर के मुताबिक कौन सा है, या। अब देखें उन्होंने नीचे आप अगर देखें तो उन्होंने मिसाल के जरिए भी बात समझाई है। एक मिनट सिर्फ, ये ना थोड़ी सी जूम की सेटिंग चेंज हुई है, तो मुझे ये एक दो चीज़ें नहीं मिल रही इसमें। ये कल खुद ही जो है ना वो अपलोड हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मुझे मसला पेश आ रहा है। एक मिनट में जी। अब देखें, अब आप अगर मिसाल में देखें उन्होंने हमजा रखा है और हमजा से पहले जबर है, हमजा से पहले क्या है, जबर है। और फिर आगे हमजा है और हमजा से पहले पेश है, और फिर आगे हमजा है और हमजा से पहले जेर है। उसने पहली बात की थी कि हमजा साकिन हो। तीनों मिसालों में देखें हमजा साकिन है, देखें, और उसका मां कबल मुतारिक हो, यानी उससे जो पहले हरफ है उसके ऊपर जबर या जेर या पेश हो। तो देखें तीनों मिसालों में कहीं जबर है, कहीं जेर है, और कहीं क्या है, पेश है, कहीं क्या है, पेश है। तो आपने हमजा को जबर के मुवाफिक हरफे इल्लत से बदलना है, तो जबर के मुवाफिक हरफे इल्लत क्या है, अलिफ। जबर के मुवाफिक हरफे इल्लत क्या है, आपने पेश के मुवाफिक हरफे इल्लत से बदलना है, तो पेश के मुवाफिक हरफे इल्लत क्या है, वाओ। और आपने जेर के मुवाफिक हरफे इल्लत से बदलना है, जेर के मुवाफिक हरफे इल्लत क्या है, या।
अब आप देखें मिसालें, उसने 3 मिसालें दी हैं। देखें मिसाल रासुन से रासुन, रासुन से, अब रासुन को आप देखें, देख रहे हैं सारे? अच्छा आप देखें हमजा साकिन है, हमजा से पहले वाला हरफ मुतहर्रिक है, दोनों बातें पूरी हैं। और हमजा से पहले हरकत कौन सी है? हमजा से पहले हरकत कौन सी है? तो लिहाजा आप जायज है, उसने ऊपर क्या कहा था कि बदलना, देखें उसे मां कबल की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज है, वाजिब जायज है। तो लिहाजा जायज है कि रा सुन को हमजा को अलिफ बना दो, रा सुन, रा सुन। और बु सुन आगे दूसरी, अब आप वजाहत पढ़ें। रा सुन में हमजा साकिन है और मां कबल मुतहर्रिक हरफ मफ्तू है, इसलिए हमजा को फतह के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदला, इसलिए हमजा को फतह के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदला, रा सुन हो गया। दूसरी मिसाल देखें, बु सुन, क्या है? हमजा साकिन है, हमजा से पहले मुतहर्रिक है और वो क्या है? पेश है, वो क्या है? पेश है, वो क्या है? पेश है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आ रहा हूँ। बु सुन, हमजा साकिन है और हमजा से पहले पेश है, हमजा से पहले क्या है? पेश है। लिहाजा अब जायज है कि हमजा को वाव से बदल दें, हमजा को किससे बदल दें? वाव से। बु सुन क्या बन गया? बु सुन। बू सुन, बू सुन से क्या बन गया? बू सुन। बू सुन से क्या बन गया? बू सुन। अच्छा बू सुन में हमजा साकिन है और मां कबल मुतारिक हरफ मजमूम है, मां कबल मुतारिक हरफ क्या है? मजमूम है, यानी उस पे जम्मा है, इसलिए हमजा को जम्मा के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदला, तो बू सुन हुआ, बू सुन हुआ। समझ आ गई? सबको आ गई? अच्छा तीसरी मिसाल देखें, ज़ेबुन, क्या जी? ज़ेबुन से बना ज़ीबुन, क्या बना? कैसे बना जी? वजाहत, ज़ेबुन में हमजा साकिन है और मां कबल मुतहर्रिक हरफ मकसूर है, इसलिए अब कसरा जेर के मुवाफिक हरफ इल्लत क्या था? या, लिहाजा जेर के मुवाफिक हरफ इल्लत या के साथ जो है हमजा को बदल दिया, इसलिए हमजा को कसरा के मुवाफिक हरफ इल्लत या से बदला, तो बन गया ज़ीबुन। क्या बन गया? अच्छा मैं आपको कल पूछूंगा ज़ीबुन असल में क्या था, अब आप सारे अच्छी तरह सुन लें। आपने कहना है कि ज़ीबुन असल में था ज़ेबुन, ज़ीबुन असल में क्या था? ज़ेबुन हमजा साकिन है और मां कबल हरफ मुतहर्रिक है, मां कबल हरफ क्या है? और उस पर हरकत जो है वो जेर है, लिहाजा जायज है कि हमजा को जेर के मुवाफिक हरफ इल्लत या से बदल दें। किससे बदल दें? तो बन गया ज़ीबुन। क्या बन गया? ज़ीबुन। तो ये एक कायदा है, ये आपने कायदा भी याद करना है, और मिन्नो अन जैसे ये मिसालें लिखी हैं, ये वैसे आप लोगों ने क्या करना है? याद करना है। और पिछली मिसालें भी आप लोगों ने इसी तरह क्या करनी है? याद करनी है। तो ये आपने एक कायदा पढ़ा, क्या पढ़ा? एक कायदा पढ़ा। और ये एक कायदा किसका है? महमूज का। किसका? महमूज का। ये कायदा किसका है? महमूज का। सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा।